أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. الحمدللہ، آپ کے سامنے سورہ قصص آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور پھر حسب سابق ان کی تفسیر آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ولما، اور جب، توجہ، اس نے توجہ کی، رخ کیا، ولما، اور جب، توجہ، اس نے رخ کیا، اس نے توجہ کی، تلقاء مدینہ، مدین کی طرف۔ تلقاء کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، مدین شہر کا نام۔ اور جب اس نے رخ کیا مدین کی طرف، قال، تو انہوں نے کہا، عسى ربی، امید ہے کہ میرا رب، ان یہدینی، یہ کہ وہ مجھے دکھائے گا، میری رہنمائی کرے گا، سواء السبیل، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ میری رہنمائی کرے گا کس کی طرف؟ سیدھے راستے کی طرف۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف توجہ کی تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا پروردگار میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ ولما ورد، اور جب وہ پہنچا ماء مدین، مدین کے پانی پر، وجد، اس نے پایا، علیہ، اس پر، امتن، ایک گروہ۔ ولما ورد، اور جب وہ پہنچا ماء مدین، مدین کے پانی پر، وجد علیہ، اس نے پایا اس پر، امتن، ایک گروہ، من الناس، لوگوں میں سے، یسقون، وہ سب پانی پلا رہے تھے، ووجد،
اور اس نے پایا من دونہم ان کے علاوہ امرأتین دو عورتوں کو تذودان وہ دونوں روکے کھڑی تھی وہ دونوں روکے کھڑی تھی قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما کیا معاملہ ہے تم دونوں کا ما خطبکما تم دونوں کا کیا معاملہ ہے قالتا وہ دونوں کہنے لگی ان دونوں نے کہا لا نسقی ہم پانی نہیں پلاتی حتی یہاں تک کہ یصدر وہ واپس لے جائے الرعاء چرواہے اپنے مویشی کو یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشی کو واپس لے جائے وابونا اور ہمارا باپ شیخ بوڑھا ہے کبیر بڑی عمر والا ہے دوبارہ ترجمہ کرنے لگا ہوں ولما ورد ماء مدین اور جب وہ مدین کے پانی پہ پہنچے تو انہوں نے پائی وہاں ایک جماعت لوگوں کی جو پانی پلاتے تھے اور اس نے پایا ان سے ذرا دور دو عورتوں کو جو اپنے جانوروں کو روک رہی تھی کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا حال ہے تمہارا کیا ماجرا ہے تمہارا تو انہوں نے کہا ہم نہیں پلاتی پانی یہاں تک کہ یہ چرواہے واپس لوٹ جائے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر اور ہمارا باپ جو ہے وہ عمر رسیدہ بوڑھا آدمی ہے فسقا لہما فسقال تو اس نے پانی پلا دیا لہما ان دونوں کے لیے ثم تولا پھر وہ پیچھے ہٹا الی الظل سائے کی طرف فقال بس کہا ربی اے میرے پروردگار انی بے شک میں لما اس کا جو انزلت تو نازل فرمائے الیہ میری طرف من خیر بھلائی میں سے فقیر بہت زیادہ محتاج ہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ہے میرے پروردگار بے شک میں تو جو بھی نازل فرمائے تو میری طرف بہتری میں سے بلائی میں سے اس کا محتاج ہوں فجاءته فجاءته پھر آئی اس کے پاس احداہما ان دونوں میں سے ایک عورت تمشی وہ چل رہی تھی علی الصحیاء بہت حیا کے ساتھ وہ خاتون بڑی حیا کے ساتھ چل رہی تھی قالت اس نے کہا ان ابی بے شک میرے والد یدعو کا وہ بلاتے ہیں آپ کو لیجزیہ کا تاکہ وہ بدلہ دیں تجھے اجرا مزدوری کا ما سقیتا جو تو نے پانی پلایا لنا ہمارے لیے یعنی جو تو نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہمارے والد اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں فلما پھر جب جاءہ وہ آیا اس کے پاس وقصہ اور اس نے بیان کیا علیہ اس پر القصص اپنا قصہ قال اس نے کہا لا تخف تو خوف نہ کر نجوت تو نجات پا گیا من القوم الظالمین سب ظالم لوگوں سے قالت کہا احداہما ان میں سے ان دونوں میں سے ایک نے یا ابتی اے میرے بجان استاجر ہو اس کو اجرت پہ رکھ لیجئے اس کو ملازمت پہ رکھ لیجئے ان خیر بے شک بہترین من وہ شخص جسے استاجرت آپ اجرت پہ رکھیں گے اس میں کیا صفات ہونی چاہیے القوی کہ وہ طاقتور ہو الامین کہ وہ امانت دار ہو بے شک بہترین ملازم وہ ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو یہ دو صفات اور وہ یہ دونوں صفات اس میں موجود ہے قال اس نے کہا بے شک انی اریدو میں چاہتا ہوں ان کے حق کا کہ میں نکاح کرا دوں تجھ سے احدی ابنتی ہاتینی ایک بیٹی کا ان دونوں بیٹیوں میں سے اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک کا تجھ سے نکاح کرا دوں اعلی اس شرط پر انت جورانی کہ تو اجرت پہ کام کرے میرے پاس تو مزدوری کرے میرے پاس سمانی حجت 8 سال فین اتممت پھر اگر تو پوری کر لے 10 سال فمن عندک تو وہ تیری طرف سے ہے وما اريد اور میں نہیں چاہتا ان اشق علیک کہ میں سختی کروں تجھ پر ستجدنی انشاء اللہ ان قریب ضرور تو پائے گا مجھے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا من الصالحین نیک لوگوں میں سے قال اس نے کہا ذالک بینی و بینک یہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان ہے ایم الاجلین جون سے بھی دونوں مدتوں میں سے قضیت میں پوری کروں فلا عدوان بس نہیں کوئی زیادتی علیہ مجھ پر واللہ اور اللہ تعالی علی ما نقول وکیل
उस बात पर जो हम कह रहे हैं, वकील गवाह है, निगहबान है। तो ये इन आयत का तर्जुमा आपके सामने बयान कर दिया। अब मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की होगी वो आपके सामने जिक्र करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तर्जुमे की समझ आ गई होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों एक तिब्बती आदमी का कत्ल हो गया और कत्ल का इल्जाम भी आप पर लगा, तो फिरौन के दरबारियों ने आपस में मशवरा किया कि इस शख्स को सजाए मौत देनी चाहिए। चुनांचे आपकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। इसी असना में मूसा अलैहिस्सलाम की एक खैरख्वाह ने आपको इत्तला दे दी कि फिरौन ने आपकी गिरफ्तारी और कत्ल का हुक्म दे दिया है, तो आप बिला ताखीर यहाँ से निकल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन वहां से चल पड़े। आपको परेशानी भी लाहिक थी कि पता नहीं अब क्या सूरत हाल पेश आएगी। इसी जिमन में आप पीछे मुड़ मुड़ के भी देखते थे और इन हालात में आप ये दुआ भी कर रहे थे, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, कि मुझे जालिम कौम से बचा ले। अल्लाह ताला ने आपकी ये दुआ कबूल फरमाई और आपको ऐसे रास्ते में डाल दिया जो मदियन की तरफ जाता था और जहां आपको अमान हासिल हो सकती थी। उस जमाने में फिरौन की अमलदारी से बाहर करीब तरीन इलाका मदियन का ही था, लिहाजा आप उसी तरफ चल पड़े। और ये बड़ी बेहतरीन दुआ है, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। कोई भी मुश्किल इंसान को पेश आए, तो किसी की तरफ से भी जुल्म का खदशा हो, मुश्किलात और परेशानी को खदशा हो, तो इसको कसरत से इंसान पढ़ता रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमा देते हैं। कुछ अर्सा कबल कुछ परेशानी आई थी, तो इस दुआ का विर्द करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर हिफाजत फरमा दी थी। तो इसको कसरत से आप लोग पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हर एक को हर किस्म की परेशानी से हिफाजत फरमा दे। बहरहाल वलम्मा तवज्जह तिलका मदियन, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियन की तरफ तवज्जो की यानी रुख किया, तो उम्मीद के इस कशमकश के दरमियान काला, आपकी जुबान से ये निकला, आसा रब्बी यहदियनी सवा सबील, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार सीधे रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई फरमाएगा। अब मंजिल के रास्ते से वाकिफ नहीं थे, वैसे भी परेशानी लाहिक थी, तो ऐसी हालत में अल्लाह ताला से दुरुस्त रास्ते की दुआ भी की। उस शहर से मदियन 8-10 दिन की मसाफत पे था। अब बेसर व सामानी की हालत में चल पड़े। न कोई तोशा था, न कोई दीगर ज़ादे सफर। अब अल्लाह के भरोसे तने तनहा चलते रहे। रास्ते में पेट भरने के लिए दरख्तों और झाड़ियों के पत्तों और घास के अलावा कुछ नहीं था। अब इसी हालत में 10 दिन के सफर के बाद मदियन पहुंच गए। अब ये सफर के दौरान के तफसीली हालत का जिक्र कुरान मजीद ने नहीं किया, अलबत्ता वहां पे पहुंच जाने के बाद की हालात का जिक्र किया है। वलम्मा वरदा मा मदियना, जब आप मदियन के पानी यानी कुएं पे पहुंचे, वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासी यसकून, तो आपने वहां पर लोगों की एक जमात को पाया जो जानवरों को पानी पिला रहे थे। वो क्या कर रहे थे? जानवरों को पानी पिला रहे थे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से चलकर मदियन के एक इलाके के करीब पहुंचे। यहाँ पर आने का ख्याल अल्लाह ताला ने आपके दिल में इसलिए डाला कि आपको इस मकाम के साथ कुछ मुनासबत भी थी। मदियन की बस्ती हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियन के नाम पे मौसूम थी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। लिहाजा
इधर आने में आपके लिए अल्लाह ताला ने एक खास कशिश पैदा कर दी थी। अब मदियन की बस्ती तो वहां मौजूद नहीं थी, अलबत्ता उसके खंडरात पाए जाते हैं जिन्हें देखने के लिए सयाह भी जाते हैं। वहां के मकामी लोग मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के तारीखी मकामात की निशानदही करते हैं और इस सिलसिले में दो कुएं भी दिखाते हैं जो अब वीरान हो चुके हैं। इनमें से एक कुएं से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी निकाल के शुआइब अलैहिस्सलाम की बकरियों को पानी पिलाया था। उस जमाने के लोग पानी की जरूरियात उसी कुएं से पूरे करते थे। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम 10 दिन के सफर के बाद थके मांदे मदियन के कुएं पे पहुंचे। लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। ववजद मिन दुनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान, उन लोगों के अलावा आपने दो औरतों को देखा जो अपने जानवरों को पानी पर जाने से रोक रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम तो शुरू से ही कमजोरों के हामी और जालिमों के दुश्मन थे। ये माजरा देख के वो रह न सके और उन दो औरतों की तरफ मुतवज्जे हुए। क़ाल मा खत्बुकुमा, कहने लगे तुम दोनों का क्या हाल है, यानी क्या वजह है कि तुम अपनी बकरियों को पानी की तरफ जाने से रोक रही हो, जबकि उन्हें भी पानी की अशद जरूरत है। उन्होंने अपनी मजबूरी का इजहार किया। क़ालता ला नस्क़ी हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शैख़ुन कबीर, वो दोनों कहने लगी ला नस्क़ी, कि हम अपने जानवरों को उस वक्त तक पानी नहीं पिला सकती जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को सिराब करके चले न जाएं। हम अपने जानवरों को इसलिए रोक रही है कि ये चरवाहे फारिग होके चले जाए तो बचा कुचा पानी हम भी अपनी बकरियों को पिला लें। उन्होंने ये भी बताया वह अबूना शेखुन कबीर, और हमारा बाप बूढ़ा और उम्र रसीदा आदमी है, वो इस काबिल नहीं है कि मशक्कत का काम कर सके, लिहाजा बामरी मजबूरी जानवरों की देखभाल हमें करना पड़ती है। तो ये सुन के मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। अगरचे वो खुद तवील सफर करके थके हारे पहुंचे थे, मगर उन्होंने लड़कियों की मदद करना जरूरी समझा। चुनांचे आपने उनके जानवरों को पानी निकाल कर पिलाया, क्योंकि आपको अन करीब नबूवत मिलने वाली थी, इसलिए अल्लाह ताला आपको मुख्तलिफ आजमाइशों में डाल रहा था। सूरह ताहा में अल्लाह ताला का इरशाद है, वफतन्ना का फतूना, हमने तुम्हें मुख्तलिफ तरीकों से आजमाया। मिस्र से मदियन तक का तवील सफर भी आपकी आजमाइश थी। इससे पहले पैदाइश के वक्त भी आपकी आजमाइश हुई थी। इसके बाद भी आपको बार बार आजमाइश में डाला गया और आप हर बार कामयाब हुए। आपकी इस गरीबुल वतनी के बावजूद आपके दिल में शफकत का जज्बा बेदार हुआ और आपने उन औरतों के लिए, उन औरतों के जानवरों को जो है पानी पिलाया। तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के जज्बात ऐसे ही पाकीज़ा होते हैं। वो खुद भूखे प्यासे रह कर भी दूसरों को खिलाते पिलाते हैं। उनकी नीयत और आज़ाइम नेक होते हैं, लिहाजा वो गरीब उल वतनी में भी मुस्तहिकीन की मदद करना अपना फरीजा समझते हैं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने भी यही काम किया। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि उस इलाके के चरवाहे जब अपने जानवरों को पानी पिला लेते थे तो कुएं पे भारी पत्थर रख जाते थे ताकि कोई दूसरा शख्स पानी ना निकाल सके। वो पत्थर 10 आदमी भी मिलके बमुश्किल हटाते थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने तने तनहा उस पत्थर को एक साइड पे करके पानी के एक डोल निकाला और बकरियों को पिलाया। तो इस आयत करीमा से लड़कियों की मजबूरी का इजहार होता है कि वो मखसूस हालात की बिना पे बकरियों की देखभाल कर रही थी। हकीकत भी यही है कि मशक्कत के तमाम काम मर्दों की जिम्मेदारी है, ना कि औरतों की। खेती बाड़ी करना, तिजारती सफर करना, कानकुनी करना, जानवरों की परवरिश करना, ये सब जो है ये मर्दों के जिम्मे है, मर्दों के काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों और औरतों के लिए मुख्तलिफ काम जो है दायरा हाय कार मुख्तलिफ मुतय्यन फरमाए हैं। बाहर के काम जो है ये मर्दों के जिम्मे है।
जबकि घर की चारदीवारी के अंदर बच्चों की देखभाल करना, उमूर खानदारी, ये औरतों पे आयद होते हैं। आप ये खवातीन के इबादत वगैरह का तरीका भी देखें, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा औरत के पर्दे का ख्याल रखा गया है। चाहे वो आवाज की बात हो, या नमाज पढ़ने का तरीका हो, हज का तरीका हो, हर एक चीज में औरत के पर्दे का बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया है। आज मगरिबी तहजीब के जो शिदाई लोग हैं, वो प्रोपेगेंडा के जरिए से औरत और मर्द दोनों को बराबर करार देते हैं, एक दूसरे को शाना बशाना खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो औरतों को हुकूक दिलाना चाहते हैं। औरतों के हुकूक वही है जो शरीयत ने, इस्लाम ने मुकर्रर किए हैं। उससे बढ़ के कोई हुकूक हो ही नहीं सकते। ये जो दोनों असनाफ है, इनके हुकूक और फ़राइज़ मुख्तलिफ है, और इनका इख्तिलात मुआशरे में बेरारवी का बाइस बन रहा है। और आए दिन आप अखबारात में पढ़ते रहते हैं किस किस्म के वाकयात हमारे सामने आते हैं। इस हद तक तो दुरुस्त है कि बहैसियत इंसान होने और मुकल्लफ होने के मर्द और औरत दोनों बराबर है, लेकिन सिर्फ सिंफ के एतबार से दोनों में फर्क है। एक सिंफ नाजिक है, और दूसरी जो है वो मशाक। बराबरी का तस्वुर तो ये खिलाफ फितरत है। हर सिर्फ के अलग अलग हुकूक और जुदा जुदा फराइज है। जो लोग औरतों को मुआशरे के हर मैदान में खींच लाना चाहते हैं, वो हुकूक और फराइज से तजावुज के मुर्तकिब होते हैं। ये इसम्बलियों की रुकनीत से लेके कारखानों तक, फैक्ट्रियों तक, दफ्तरों की मुलाजमत, पुलिस और फौज में भर्ती, खेलों के मैदान में औरतों का आना, ये सिर्फ नाज़िक के लिए हरगिज जायज नहीं है हर हालत में। अलबत्ता जहां औरत की हयादारी को मलहूज खातिर रखते हुए उसके लिए काम करना मुमकिन हो, पर्दे के अंदर रहते हुए बगैर इख्तिलात के, वहां वो अपना फरीजा अदा कर सकती है। मसलन लड़कियों के लिए जो अलग स्कूल और कॉलेज बने हुए हैं, उनमें तालीम दे सकती है। ऐसे इदारों में जहां मर्द और औरत उन दोनों का इख्तिलात ना हो, वहां जा सकती है। अलबत्ता जहां मर्द और औरतें मिल के काम करेंगे, वहां लाजिमन खराबी जो है पैदा होगी। लिहाजा इस मामले में हमें यहूद और नसारा की अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। उनके बजाय इस्लामी नुक्ते नज़र के मुताबिक और यानी और फहाशी से बचकर बेहतर तरीका कार इख्तियार करना चाहिए। तो बहरहाल, जब मूसा अलैहिस्सलाम हमदर्दाना जज्बे के तहत दो औरतों की बकरियों को पानी पिला चुके, सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ली, फिर आप साए की तरफ पलटे, करीब ही कोई दरख्त था, उसके नीचे बैठ गए। उससे लड़कियों के अंदाजा लगाया कि कोई मुसाफिर आदमी है जिसकी यहाँ कोई जान पहचान नहीं है। लिहाजा थोड़ी देर आराम करने के लिए साए में बैठ गए। जाहिर है कि मुसाफिरों का घर बार तो होता नहीं, वो जरा आराम करने के लिए साए का ही रुख करते हैं। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम छाँव में आके बैठ गए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से मनकूल है, जब वो शाम और फलस्तीन गए तो वहां से मदियन 2 दिन की मसाफत पे था। कहते हैं कि वहां जाने के लिए मैंने सवारी को तेज चलाया। जब वहां पहुंचा तो मैंने वहां के उन तारीखी मकामात के बारे में पूछा। चुनांचे मुझे वो कुआं दिखाया गया जहां से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी निकाला था, वो दरख्त भी जिसके नीचे आपने आराम फरमाया था। कहते हैं कि मेरे ऊँट ने उस दरख्त के कुछ पत्ते भी खाए, लेकिन वो उसके मिजाज के मुताबिक नहीं थे, लिहाजा उसने फेंक दिए। और मैंने वहां पे
मूसा अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की और मैं वहां से वापस आ गया। इस वाक़े को इमाम तिबरी रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने भी नकल फरमाया है। तो साए में बैठ के मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी हालत पे गौर किया और फिर ये दुआ की, रब्बी इन्नी लिमा अंजलत इलैया मिन खैरिन फकीर। क्या मेरे परवरदिगार, तू मेरी बेहतरी के लिए जो कुछ भी उतारे मैं उसका मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की फजल की भीख मांगी। जरा गौर फरमाए कि आप अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे हैं, मगर उसके सामने आजिज़ी का इजहार कर रहे हैं, उससे बेहतरी के तलबगार है। आपने मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई का दावा जो है वो नहीं किया, बल्कि अपनी बेबसी का इजहार किया। अल्लाह की सारी मखलूक उसकी मोहताज है, चाहे वो फरिश्ते हो, जिन्नात हो, इंसान हो, पैगंबर हो या वली हो। उसकी रहमत के बगैर किसी को जय पनाह नहीं है। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह जो है वो गनी है, तारीफों वाला है। हर जानदार खाने पीने, चलने फिरने, सेहत आराम, हत्ता कि सांस लेने तक के लिए अल्लाह तआला का मोहताज है। इसमें नेक और बद की कोई तमीज नहीं है। यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज, आसमान और जमीन की सारी मखलूक उसी के दर के सवाली है। बशऊर मखलूक जुबान काल से मांग रही है, जबकि बेशऊर अशिया जुबान हाल से अपनी हाजत तलब करती है। मांगने वाले सब है, मगर देने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। ये तो इंसानों की बदबख्ती है जो मखलूक में से बाज को हाजत रवा और मुश्किल कुशा बना लेते हैं, हालांकि अल्लाह के अलावा किसी को कोई इख्तियार नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इसीलिए कहा था कि तू जो मुझ पे मेहरबानी करे, जो भी मेहरबानी करे, मैं उसके लिए मोहताज हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को साए में बैठे अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी। फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, ये उन दो लड़कियों में से एक शर्म और हया के साथ चलती हुई मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। इस एक लफ्ज के जरिए अल्लाह ताला ने औरतों के लिए शर्म और हया के मसले की पूरी हकीकत बयान कर दी। हया जो है ये मर्दों के लिए भी जरूरी है, मगर ये चीज अल्लाह ताला ने औरत की फितरत में डाल दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला ईमान लिमन ला हया लहू, जिसमें हया नहीं उसमें ईमान भी नहीं है। तो बहरहाल वो लड़की शर्म और हया का पेकर बन के बापर्दा झुकी नजरों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम से बात करते वक्त उसने अपने मुंह पे आस्तीन का पल्लू रख लिया था। शर्म और हया ये तो औरतों का जेवर है, लेकिन आज दुनिया में देख लें कि इसको किस तरह पामाल किया जा रहा है। अखबारात और रसायल को देख लीजिए, सोशल मीडिया को देख लीजिए, उसमें औरतों की नीम और यह तस्वीरें किस कदर बेहयाई का सबूत है। मगरबियत और इल्हाद ने लोगों को किस बेरारवी पे डाल दिया है। अखबारात और टीवी के जरिए से नए नए डिजाइनों की तराश और मेकअप के नए नए तरीके ये लोगों को किस तरफ ले जा रहे हैं। ये मीडिया के जितने भी जराए हैं और यानी और फहाशी की तशहीर में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसे तरक्की का जीना समझ रहे हैं, हालांकि इन बातों पे खुदा की लानत बरस रही है। मुआशरे में बेरारवी पैदा हो रही है, अखलाक बिगड़ रहे हैं, नस्लें खराब हो रही है। पहले ये फहाशी जो है सिर्फ सिनेमा घरों घरों जो है उनमें होती थी, अब हर हर घर में मौजूद है, हर एक के हाथ में मौजूद है।
हम मगरिब वालों की कितनी भी नकाली कर लें, उनका मकाम हासिल नहीं कर सकते। हम उनसे ये तबाकुन और यानी और फहाशी ही ले सकते हैं, वरना जिस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत है वो हरगिज देने पे तैयार नहीं है। इमदाद के नाम पे तैयार माल दे देंगे, अपने आदमी बतौर मुशीर भेजेंगे, लेकिन मतलूबा टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं, कि कहीं ये भी हमारे हम पल्ला ना हो जाए। और हमारी ये जो यूनिवर्सिटियां कॉलेजेस वगैरह है, ये खवातीन के हया को ख़त्म करने के लिए बने हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, ये मुसलमानों के अजली दुश्मन है, और वो उन्हें कभी फलता फूलता नहीं देख सकते, बल्कि वो मुसलमानों को हमेशा अपना मुहताज बना के रखना चाहते हैं। मुसलमानों ने जब भी कोई चीज हासिल की है, अल्लाह के भरोसे पे अपनी जहानत से हासिल की है। गैर अक़वाम के भरोसे पे कभी कुछ नहीं मिलेगा। ये तो इंसानियत की दुश्मन है। उनकी तहजीब और तमद्दुन को इख्तियार करना और फिर उस पर फख्र करना, ये तो लानत का बायस है। हमारा तमद्दुन तो कुरान मजीद है, उसमें हसना की तालीमात में हमारा तमद्दुन मुज़मर है। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी वफात से पहले वसीयत की थी कि मुझे रात के वक्त दफन करना, ताकि मेरी मैयत पर भी किसी गैर मर्द की निगाह न पड़े। लेकिन आज हम जिस तरफ जा रहे हैं वो तबाकुन है। तो बहरहाल उनमें से एक लड़की शर्म हया का पेकर बन के आई। कालत, और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इन अबी यदऊक, बेशक मेरा बाप तुझे बुलाता है, लियज्जियक अजर मा सक़ैत लना, ताकि वो आपको बदला दे उस चीज का जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि जब लड़कियां बकरियों को पानी पिला के वापस अपने घर गई तो उनके बाप ने पूछा कि आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। उन्होंने बताया कि वहां कुएं पे एक मुसाफिर आ गया था, जिसने हमदर्दी के तौर पे हमारी बकरियों को पानी निकाल के पिलाया, और अब वो वहां साए में आराम कर रहा है। बाप ने कहा कि तुमने उसे बुला लिया होता ताकि हम उसको खाना खिलाते। वो मुसाफिर पता नहीं कब से भूखा प्यासा होगा और कैसा है। तो बहरहाल उस लड़की ने अपने बाप की तरफ से दावत दी कि मेरा बाप आपको बुला रहा है, क्योंकि उसका अपनी तरफ से दावत जो है ये पसंदीदा मालूम नहीं होता था। और अदब का तकाजा भी यही है कि बड़ों को मुकद्दम रखा जाए। लिहाजा उसने यही कहा कि मेरा बाप तुझे बुलाता है। मूसा अलैहिस्सलाम लड़की के कहने पे चल पड़े। फलम्मा जाअहू, फिर जब वो उसके बाप के पास पहुंचे, वक़स्स अलैहिल क़सस, और उसके सामने सारा वाकया बयान किया कि इस तरह मेरे हाथों से कत्ल हो गया है और फिरौनी हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, लिहाजा मैं इधर भाग आया हूँ। आपकी कारगुजारी सुन के उस बुजुर्ग ने कहा, क़ाल ला तख़फ़, ये तू खौफ ना खाओ, नजौत मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, तुम जालिम कौम की दस्त बुर्द से बच निकले हो, तू निजात पा गया है। इस इलाके में फिरौन की अमलदारी नहीं है, न उसके कारिंदे यहाँ आते, लिहाजा तुम बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हें उनके जुल्म से बचा लिया है। मुफस्सिरीन बयान फरमाते कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया गया तो उन्होंने ये कह के खाने से इनकार किया कि मैं उस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जो नेकी के काम पे बदला नहीं लिया करते। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि हमारी आदत भी यही है कि हम मुसाफिरों को जरूर खाना खिलाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी के बहुत से वाकयात जुबान ज़द आम है। खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है,
मन लम युकरिम ज़ैफना फलैसा मिन्ना, जो शख्स मेहमान की इज्जत नहीं करता वो हमारे ग्रोह में से नहीं है। वाकिफकार की इज्जत तो की ही जाती है, यानी जो पहचान वाला होता है। नावाकिफ की मेहमान नवाजी भी उतनी ही जरूरी है जितनी जाने पहचाने मेहमान की। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आपके हुक्म के मुताबिक यहफज़ून अल गरीब, मुसाफिर की हिफाजत करते थे, उसको भूखा प्यासा नहीं छोड़ते थे। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर में बुलाने वाले बुजुर्ग कौन है, इसके बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। बात कहते हैं कि आप अल्लाह के जलील कदर नबी शुएब अलैहिस्सलाम है, और बाद दूसरे असहाब कहते हैं कि आप शुएब अलैहिस्सलाम नहीं है, क्योंकि उनके ज़माने और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 400 साल की मसाफत है। और फरमाते हैं कि आप शुएब अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, लेकिन ज़्यादा मशहूर यही है कि आप शुएब अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला ने आपका नाम कुरान में नहीं बताया, दीगर आसमानी किताबों में उनका जिक्र आता है। ताहम ये बात यकीनी है कि आप अल्लाह के नेक सीरत इंसान थे। क़ालत इहदाहुमा या अबति इस्तअजिरहु इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। तो उन खवातीन में से एक ने अपने बाप से इस तरह बात की। उनमें से एक कहने लगी, ए अब्बाजी, इस शख्स को अपना नौकर रख ले, आप बूढ़े हो चुके हैं, बिनाई भी खत्म हो रही है, काम काज नहीं कर सकते, लिहाजा बकरियों की देखभाल के लिए इस शख्स को अपने यहाँ अजीर रख ले तो बड़ा अच्छा होगा। इस औरत का नाम यहाँ जिक्र नहीं किया गया, अलबत्ता तफासिर में उसका नाम सफूरा बयान किया जाता है, जबकि छोटी बहन का नाम शरफा था। तो सफूरा ने सिफारिश की कि ये शख्स गरीबुल वतन है, इसके साथ बहुत से हादसात पेश आए हैं जिसकी वजह से खौफजदा है, तो आप इसको बकरियां चराने पे नौकर रख ली, इसकी मसरूफियत का सामान पैदा हो जाएगा और हमें भी सहूलत हासिल हो जाएगी। आगे उस खातून ने एक बड़ा उम्दा जुमला कहा, इन खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, कि आप जो भी मुलाजमत पे रखेंगे उसे ताकतवर और अमानतदार होना चाहिए। तो खिदमत के लिए ऐसा ही आदमी बेहतर है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में आता है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी से पूछा कि तुम्हें कैसे मालूम है कि ये शख्स इन सिफात का हामिल है। तो लड़की ने बताया कि जब इस शख्स ने बड़ा वजनी पत्थर कुएं के मुंह से उठाया तो मैं समझ गई कि भूखा प्यासा होने के बावजूद ये आदमी 10 आदमियों पे भारी है, और अमानतदार इस तरह साबित हुआ कि जब मैं इसे कुएं से बुला के घर ला रही थी तो इसके आगे आगे चल रही थी। इत्तेफाकन हवा की तेजी से मेरे जिस्म का कपड़ा जरा उड़ा। इसने कहा कि तुम मेरे पीछे चलो और जहां रास्ता तब्दील करना हो मुझे आवाज दे देना। तो इससे मालूम हुआ कि मुलाजमत की शराइत में ये चीजें जरूरी हैं कि उम्मीदवार जो है उसकी कुव्वत यानी सलाहियत का जायजा लिया जाए, और दूसरा ये कि वो दयानतदार भी हो। तो काम काज करने के लिए सेहत का होना भी जरूरी है। अगर मुलाजिम की सेहत अच्छी नहीं होगी तो वो काम अच्छे तरीके से अंजाम नहीं दे सकेगा। तो काम का इंसान वो होता है जिसमें ये दोनों सिफात हो, यानी वो अमीन भी हो, यानी अमानतदार भी हो, और दूसरा जिस फील्ड से उसका ताल्लुक हो उसमें वो महारत भी रखता हो। तो आज अगर हम चाहते हैं कि काम के इंसान बन जाए, मुफीद इंसान बन जाए, तो हमें अपने अंदर अपने बच्चों के अंदर ये दो सिफात पैदा करनी चाहिए। कवि से मुराद सिर्फ जिस्मानी ताकत वाला नहीं है, कवि से मुराद जिस फील्ड से भी उसका ताल्लुक हो, जिस फील्ड से भी उसका ताल्लुक हो, तो वो उसके उसके अंदर महारत रखता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महारत भी नसीब फरमा दे और अमानतदार भी हमें बना ले।
تو ये सारे हुकूक जो है और ये सारी सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1500 साल पहले कुरान मजीद में और नबी के फरमान ने वाजे कर दिए हैं कि इंसान की बुनियादी हुकूक जो है खुराक, पानी, लिबास और मकान है। उसके अलावा फ़राइज़ की अदायगी की हद तक तालीम भी फ़र्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा कि हर मुसलमान मर्द और औरत पे तालीम हासिल करना फ़र्ज है। लेकिन ये याद रखिएगा, आजकल हमारे यहाँ जिस तरह तालीम मुरवज है कि मखलूत निज़ाम तालीम है, ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। इसकी कोई भी इजाज़त नहीं दे सकता हो। इसी तरह इंसान की सेहत जो है ये भी इन हुकूक में शामिल है कि सेहत के बगैर इंसान जो है ना इबादत कर सकता है, न रोजगार कर सकता है। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मजदूर या किसान को काम पर लगाओ तो दरमियान में वक्फा भी दो ताकि वो आराम कर सके। मुसलसल 12-12 घंटे मजदूर से काम लेना ये ज्यादती है। उसे मुहद्दब सोसाइटी में जाने का मौका मिलना चाहिए, तालीम हासिल करने का वक्त मिलना चाहिए, इबादत के लिए वक्फा चाहिए। ये सब चीजें उसके बुनियादी हुकूक में शामिल है। अगर वो आखिरत की फिक्र नहीं करेगा तो हमेशा के लिए गाठे में पड़ जाएगा। पुराने जमाने में रूम और ईरान वाले अपने गुलामों और नौकरों से घोड़े बैल की तरह काम लेते थे, उन्हें खुराक भी मामूली फराहम करते थे। ये तो जुल्म की बात है। लिहाजा हर जमींदार, दुकानदार, कारखानेदार का फर्ज है कि वो मजदूरों से काम लेता है तो उनके हुकूक का भी ख्याल करे। और मजदूर की दूसरी सिफत यह कि वो अमानतदार हो। अगर उसमें ये सिफत पाई जाती है तो वो अपने काम में कोताही नहीं करेगा, वक्त को ज़ाया होने नहीं देगा, मालिक के माल में खयानत नहीं करेगा। लेकिन अगर मुलाजिम बददियानत होगा, काम चोर होगा, तो वो मालिक की चोरी करेगा, वक्त ज़ाया करेगा, हीले बहाने से काम से जी चुराएगा। तो ये दोनों शर्तें ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक सिफत भी ना हो तो दुनिया में फितने पैदा हो रहे होंगे। मालिक शिकायत करेगा कि मजदूर काम नहीं करते, मजदूर जो है वो नाला होगा कि मालिक मुआवजा पूरा नहीं देता। आज हर फैक्ट्री में, हर दफ्तर में, दुकान में मालिक और नौकर के दरमियान कशमकश जारी है। नतीजा ये है कि फरीकैन नुकसान उठा रहे हैं और उसके साथ साथ मुल्क की मजमूई पैदावार जो है वो भी मुतासिर हो रही है। तो बहरहाल सलाहियत और दियानत ये मजदूर की ज़रूरी शराइत है, मुलाजमत मुलाजिम की ज़रूरी शराइत में से है। दूसरी तरफ मालिक पे भी बात जिम्मेदारियां आयद होती है। उनका जिक्र भी शुएब अलैहिस्सलाम के बयान में आ गया है कि मैं तुम पे मशक्कत नहीं डालूंगा और ये कि तू मुझे नेकी वालों में पाएगा। और तीसरी जिम्मेदारी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे कर दी कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जब किसी मजदूर से मशक्कत का काम लो तो उसमें खुद भी उसका हाथ बढ़ाओ, उसको ऐसा काम ना दो जो उसकी कुव्वत और सलाहियत से ज्यादा हो। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब किसी शख्स को काम पे लगाते तो घर वालों को ताकीद कर दे कि मजदूर की मजदूरी बरवत और पूरी पूरी अदा करना। तो बहरहाल मालिक भी नेकी वाला अच्छा होना चाहिए जो गरीबों के एहसान न करे बल्कि उनके जायज हुकूक अदा करे। इसीलिए शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बता दिया कि मैं तुझ पे नाजायज मशक्कत नहीं डालूंगा और तुम मुझे नेकी वालों में पाओगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में आता है कि तीन हस्तियां बड़ी ही साहिब फरासत हुई। एक शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा है जिसने अपनी जानत से जान लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम ताकतवर और अमानतदार है। दूसरी हैसियत यूसुफ अलैहिस्सलाम का खरीदार है जिसने घर वालों को कहा कि इस गुलाम को अच्छे तरीके से रखना, आसा अय्यन फ़अना औ नत्तखिज़हु वलदा, शायद कि हमारे लिए ये मुफीद साबित हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम इस पे पूरे उतरे, उन्होंने अपनी सलाहियत की बिना पे मालिक का सारा कारोबार संभाल लिया।
आपने तमाम नज्म व नसक इस जहानत से चलाया कि आमदनी में 3 गुना इजाफा हो गया। और तीसरी साहिब फरासत हस्ती हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा नामजद करके बहुत बड़ी फरासत का सबूत दिया। बाद में इस इंतखाब ने साबित कर दिया कि आप उम्मत के हक में बेहतरीन आदमी थे। मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम मुअम्मर हो चुके थे और अक्सर गिरिया करते रहते थे, हत्ता कि आंखों की बीनाई भी खत्म हो गई थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, शुएब रोते क्यों हो? क्या जन्नत का शौक है या जहन्नुम का खौफ है? तो आपने अर्ज किया, परवरदिगार, शौकन इला लिकाइक, तेरी मुलाकात की शौक में रोता रहता हूँ। इस पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमा के आपकी हौसला अफजाई फरमाई। हनी अल्लाह का लिकाई या शुएब, यानी ऐ शुएब तुम मेरी मुलाकात मुबारक हो, वो यकीनन तुम्हें नसीब होगी। इसीलिए मैंने तेरी खिदमत के लिए मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया है। दूसरी रिवायत में आता है कि मैंने अपने कलीम को तेरी खिदमत में मामूर कर दिया है। बास कहते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला ने शुएब अलैहिस्सलाम की बिनाई भी लौटा दी थी। मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं कि इस आयत करीमा से ये बात जाहिर होती है कि आलम असबाब में जरूरी और जायज असबाब को इख्तियार करना ये तवक्कुल की मुनाफी नहीं है। बहुत जरूरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुलाजमत इख्तियार करना बिल्कुल दुरुस्त था। अलबत्ता बाज हस्तियों के तर्क के असबाब का जिक्र भी मिलता है, और वो भी उसी सूरत में है कि जब बर्दाश्त का मादा बदरजा या तब मौजूद हो। मसलन पुराने जमाने के तालिब इल्म असबाब को इख्तियार नहीं करते थे ताकि उनके हुसूल इल्म में कमी ना आए। ऐसी हालत में वो सवाल भी नहीं मांगा करते थे, बल्कि वो अल्लाह के भरोसे इल्म में मशगूल होते थे हमेशा। मिसाल के तौर पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्ने हुमाम और इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह का नाम पेश किया जा सकता है, जिन्होंने इल्म के हुसूल के लिए लंबे सफर किए मगर किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम जब शुएब अलैहिस्सलाम उनके हालात से वाकिफ हुए और उनकी लड़की ने सिफारिश भी की, क़ाल इन्नी उरीदु अन उनकिह इहदा इब्नतैय हातैन, वो कहने लगे मैं चाहता हूँ कि अपनी इन बेटियों में से एक के साथ तुम्हारा निकाह कर दूं, लेकिन शर्त ये है, अला अन तअजुरनी समानिया हिजज, कि तुम 8 साल तक हमारी मुलाजमत करो, यानी बकरियों की देखभाल करो। ये मुद्दत तो निकाह के लिए जरूरी है। फ़इन अतममत अशरन फमिन इंदिक, और अगर आप 8 की बजाय 10 साल पूरे कर दोगे तो ये आपकी मर्जी पे मुनहसर है। वमा उरीदु अन अशुक्क अलैक, और मैं अपनी तरफ से तुम पे कोई बोझ नहीं डालना चाहता। और पांचवी बात यह है, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस सालिहीन, कि तू मुझे नेकों में से पाएगा, मैं तुम्हारे साथ जाती नहीं करूंगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मसलात खुदावंदी के तहत मुलाजमत के 10 साल पूरे किए। शाह अब्दुल कादिर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी इस किस्म के हालात पेश आए कि आपको मुकरमा से तंग करके निकाला गया, मगर अल्लाह ताला ने पूरे 8 साल के बाद आपका तसल्लुत मक्का पे जमा दिया, और 1 साल की मुशरिकीन को रियायत दी गई कि इस साल वो हज कर ले और आइंदा साल उन्हें बैतुल्लाह शरीफ में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। फिर आपने 10वें साल हजतुल वदा अदा किया, इसमें 1 लाख से ज्यादा सहाबा आपके हमरा थे। तो इस तरह 10 साल के अरसे में इस्लाम को मुकम्मल गलबा और मुशरिकीन का मुकम्मल खात्मा हो गया। अब सवाल पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का 10 साल तक बकरियां चराना उनकी तरफ से निकाह के लिए हक के महर तस्वुर होगा या नहीं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अगर वो बकरियां मूसा अलैहिस्सलाम की होने वाली बीवी की थी तो फिर तो 10 साल की मजदूरी हक के महर में शुमार हो सकती है, क्योंकि हक के महर बीवी का हक होता है।
اور اگر بکریاں اس کے والد کی تھی تو یہ حق مہر نہیں بن سکتا۔ اس بارے میں فقہائے احناف کا مسلک یہ ہے کہ بیوی کے والد کی مزدوری حق مہر نہیں بن سکتا، کیونکہ حق مہر نکاح کا لازمی جز ہے، اگرچہ بوقت نکاح اس کا تقرر ضروری نہیں ہے مگر ہے لازم، جو بعد میں بھی بطور مہر مثلی یعنی خاندانی عورتوں کی عام مہر کی مقدار کے برابر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان موجود ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے محرمات نکاح کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ان محرمات کے علاوہ تم باقی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، ان تبتغوا باموالکم، بشرطے کہ تم نکاح کے لیے اپنا مال خرچ کرو، یعنی حق مہر ادا کرو۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حق مہر میں چونکہ مال کا ذکر ہے، ان تبتغوا باموالکم، ٹھیک ہے، اس لیے حق مہر کی مقدار کم از کم 10 درہم تو ہونی چاہیے، جس مقدار کی چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ لیکن دیگر ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ہے حق مہر بن سکتی ہے جس پہ فریقین ناراضی ہو جائے، چاہے لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ تاہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے زیادہ قرین قیاس ہے۔ یہاں پہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ بکریاں اس لڑکی کی تھی جس سے نکاح ہونا تھا، لہذا حق مہر میں مزدوری درست ہے، لیکن عام طور پہ ایسا خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بکریاں اس کے والد کی ملکیت تھی۔ دوسری صورت یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی 10 سال کی اجرت کا حساب لگا کے اگر وہ اس کی اجرت اپنی بیٹی کو ادا کر دے تو حق مہر ادا ہو جائے گا، ورنہ باپ کی بکریاں چرانا یہ بیٹی کا حق مہر نہیں بنتا۔ البتہ متعلقہ عورت کی ذاتی مزدوری کرنا یہ حق مہر میں شمار ہوگا۔ فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں مرد کے ذمے کوئی معیوب کام، مثلا کپڑے دھونا، کھانا پکانا، گھر میں جھاڑو وغیرہ دینا نہیں لگانا چاہیے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ البتہ گھر سے باہر والے کام، مثلا کھیتی باڑی کرنا، جانور چرانا، تجارت کرنا، یہ امور جو ہے وہ سونپے جا سکتے ہیں۔ مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ ممکن ہے شعیب علیہ السلام کی شریعت میں حق کی خدمت بطور حق شمار ہوتا ہو، لہذا 10 سال کی مزدوری حق مہر میں شمار ہو گئی۔ بعض فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کسی متعینہ وقت کے لیے مزدوری کرنے کو حق مہر شمار کیا جا سکتا ہے، اور بعض دیگر اصحاب کا خیال ہے کہ حق کی خدمت بطور حق مہر شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حق مہر کے لیے مال کا ہونا جو ہے یہ ضروری ہے، جو بوقت نکاح یا بعد میں بیوی کو ادا کیا جائے، اور مزدوری چونکہ نقد مال نہیں ہے جو قابل انتقال ہو، لہذا اسے حق مہر کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نکاح کے شرائط میں سے اگر کوئی شرط غیر مناسب ہو، جیسے وٹا سٹا کی شادی، تو ایسی صورت میں ایسی شرط تو باطل ہوگی لیکن نکاح درست ہو جائے گا، گویا باطل شرط سے نکاح فاسد نہیں ہوتا۔ تو بہرحال جب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اپنی طرف سے شرائط پیش کر دی کہ تم میری 8 یا 10 سال تک ملازمت کرو، میں تم پہ کوئی مشقت نہیں ڈالوں گا اور مجھے انشاءاللہ صالحین میں سے پاؤ گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ قال ذلك بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان معاہدہ پکا ہو گیا، ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، کہ میں 8 یا 10 سال کی جو بھی مدت پوری کروں مجھ پہ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، یہ معاملہ آپ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ واللہ علی ما نقول وکیل، واللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو بات کر رہے ہیں اس پہ اللہ نگہبان ہے، ہم اس کی ذات پہ بھروسہ کر کے یہ معاملہ طے کر رہے ہیں، وہی ہمارا حامی اور ناصر ہوگا، وہی ہمارا حامی اور ناصر ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔